अरुण भूमि के तमाम दर्शकों का एक बार फिर मैं लोहित ज़िले से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले महीने यानी कि 24 सितंबर 2022 को आपने एक प्रेस ब्रीफिंग देखा होगा जिसमें कि एक व्यक्ति है खुनांग जी, जो कि मिश्मी समाज के ही एक व्यक्ति है। उन्होंने हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन जी का जो APST स्टेटस है, ST सर्टिफिकेट है, उसको चैलेंज किया था और कहा था कि जो उनका ST सर्टिफिकेट है वो कैंसिल होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जो हमारे राज्य का जो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट रिजर्व को लेकर के कई सारे सवाल उन्होंने खड़े किए थे। आज अरुण भूमि की पूरी टीम नुने तायंग जी के घर पर आई हुई है क्योंकि वो हमसे इन्हीं दो मुद्दों के ऊपर कुछ बातें करना चाहते हैं, एक ब्रीफिंग देना चाहते हैं। नुने तायंग जी का मैं परिचय आप सभी को दे देता हूँ। वो मिश्मी समाज के ही लोहित ज़िले में रहने वाले एक पब्लिक लीडर हैं और अब से थोड़ी देर बाद आप उनका ही एक प्रेस ब्रीफिंग देखेंगे जिनमें कि उन्होंने इन्हीं दो मुद्दों के ऊपर बात की है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Namaste, hello my dear brothers and sisters of Arunachal Pradesh. My name is Nune Tayang, a resident of Teju, Lohit district, Arunachal Pradesh. At the very outset, I thank the Arun Bhumi channel for covering this press briefing. I want to express my views through Arun Bhumi channel regarding the baseless and unwarranted allegation labeled against Sri Chauna Min, the Honorable Deputy Chief Minister of our state, by Mr. Khunangkri through the Valley Press channel on 24 September 2022. In that press statement, Mr. Khunangkri has alleged that Sri Chauna Min does not belong to the APST, Arunachal Pradesh Scheduled Tribe, and further raised doubt on the legitimacy of Sri Chauna Min's APST status. He has stated that Sri Chauna Min's original surname is Gohai and now he has changed her surname is Min. I condemn Mr. Khunangkri's statement, which is baseless and unwarranted. It is very unfortunate that Mr. Khunangkri is defaming Sri Chauna Min and misleading the people of Arunachal Pradesh and as well the people of the nation for his selfish and ulterior motives. His press statement is full of misinformation and half-baked knowledge. Hence, I felt it necessary to put forward my views based on historical records and facts, which are as follows. As per historical records, Sadia was the rule of the Chotia king till the years 1523. The Ahom, during the rule of the Ahom king Sumohong, ousted the Chotia ruler in the years 1523 and sent his administrator, who was known as Sadiakhwa Gohai, to rule over Sadia province. In the years 1794, the Khamti ousted the Sadiakhwa Gohai and Sadia came under the rule of the Khamti chief Choni Longkeng Kham, alias Cho Salan. The chief belonged to the Namchum clans. The others Khamti clans, such names like Chotang, Mampung, Longking, Min, etc., who held
important position in the administration of Sadia Khwa Gohain, where conferred the title of Gohain. Since then, this Khamti's clan started the practice of writing their surname as Gohain. सबसे पहले मैं सभी अरुण भूमि के चैनल के जरिए से अरुणाचल की सभी माता पिता भाई बहन आप सबको ये गोहाई क्यों लिखा गया है मैं थोड़ा सा हिंदी में आप लोगों को ब्रीफ करना चाहता हूं। सदिया प्रोविंस था उस जमाना में खामती चीफ ने अहोम किंग को कैप्चर किया है। तो कैप्चर किया तो खामती चीफ सदिया में राज करने लगा तो सदिया खोहाई एक पोस्ट था उसका नाम को रखा गया है। तो उसी चलते सदिया खोहाई गोहाई चीफ का अंदर में जितना एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाता था उन लोग भी अरे मेरा चीफ जब गोहाई लिखता है तो हम लोग भी गोहाई लिखना चाहिए बोल कि सभी ने चोटांग, मामपुंग, लांकिंग, मीन सभी ने गोहाई लिखने लगा। तो नामचुम का कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। नामचुम, लांकिंग, चौटांग ये तीनों भाई भाई है। तो नामचुम जो है टेंगा पानी आने के बाद में वो नामचुम लिखने लगा। तो आप लोगों को पता ही होगा अगस्त 29 को डॉक्टर नानी बाग आरजीयू का प्रोफेसर ने डिटेल्स भी दिया है। केवल खामती का ऊपर भी नहीं अरुणाचल का अदर्स ट्रैक के ऊपर में भी किस प्रकार से सर्च नेम को चेंज किया है। तिराप डिस्ट्रिक्ट का भी और भी डिस्ट्रिक्ट का वो डिटेल भी दिया गया है। तो मैं इतना ब्रीफ में नहीं दे पाऊंगा। मैं सिर्फ खामती क्लान का गोहाई क्यों लिखा गया इसको ही मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। क्योंकि ब्रिटिश का समय में 19 में खामती चीफ जो उससे पहले ब्रिटिश से भी पहले टैक्स लेता था वहां पे। तो ब्रिटिश ने भी आके खामती चीफ से ही परमिशन मांगा है कि हम लोग को भी सदिया में बैठने दीजिए बोली। तो खामती चीफ ने अलाउड किया है, उनको परमिशन दिया गया है। तो उसका चलते सिलसिला ऐसे हुआ। तो उस समय उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश बोल के नहीं था, नेपा था। उस समय तो कोई हम लोग का स्पेसिफिक बाउंड्री था ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। तो ऐसे करके खामती लोग जो है हमारा लोहित डिस्ट्रिक्ट के साथ में सदियों से हम लोग साथ में बैठ रहा है। खामती सिंफो भाई बहन और खुनांक्री ने 24 सितंबर 2022 को प्रेस रैली के जरिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मीन का एपीएसटी का ऊपर में क्वेश्चन रेज किया है। तो मुझे बहुत दुख लगा है। वैसे मैं सोशल मीडिया में बहुत ही कम आता हूं क्योंकि ये 24 सितंबर से लेकर के आज 3 अक्टूबर है। तो मैं सोचा कि हमारा मिसमी समाज में सीनियर्स लोग, पब्लिक लीडर, जानकारी लोग जो खुनांक्री भी एक मिसमी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उन्होंने विदाउट नॉलेज कुछ रिसर्च नहीं करके प्रेस स्टेटमेंट अपना एक खामती कम्युनिटी का ऊपर में दिया। तो मैं सोच रहा था कि उन लोग कुछ उसको माने काउंटर करेगा ये गलत चीज को। अगर मिसमी आदमी गलत बोलते हैं तो दूसरा टाइप तो आके उसको नहीं बोलेगा, उनका जानकारी नहीं है। तो मैंने बहुत दिन तक रोका, आज 9 डेज हो गया। क्यों मुझे प्रेस ब्रीफिंग में आना जरूरी सोचा है कि इस प्रकार से होगा तो हम लोग का फोर फादर सदियों से खामती भाई बहन, सिंफो भाई बहन, मिसमी हम लोग मिल करके आ रहे हैं। आज तक हम लोग का रिकॉर्ड नहीं है कि खामती मिसमी में किसी लैंड डिस्प्यूट को लेकर की, कहीं बिजनेस को लेकर की, कहीं इस प्रकार से कभी भी नहीं हुआ। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा जानना बहुत जरूरी है कि चौना मीन का फैमिली बैकग्राउंड
उसका बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। उन लोग अरुणाचल के लिए, समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन था। चौना मीन का ग्रैंडफादर का नाम है चाओ चाली मीन गोहाई, उनका ग्रैंडफादर है। और चना मीन का पिताजी का नाम है चौपाक मीन गोहाई। चौपाक मीन गोहाई जो है सुनपरा सर्कल में, लोहित डिस्ट्रिक्ट में 1948 को एक 100 मिल इस्टेब्लिश किया है। तो वो 100 मिल जो है अपना बिजनेस के लिए इस्टेब्लिश किया है, इंडस्ट्री खोला है। फिर भी सुनपरा सर्कल के लोग, लोहित डिस्ट्रिक्ट के, चाहे खमती कम्युनिटी का हो, सिंफो कम्युनिटी का हो, मिसमी हो, तो इनडायरेक्ट बहुत बेनिफिट हुआ उनसे। कैसे हुआ वो थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग का माता पिता सीनियर सुनपरा सर्कल बैकुलियांग गांव के लोग बोलते हैं कि वो 100 मिल खुलने के वजह से हम लोग को टिम्बर ऑपरेशन करने मिला, कोई गाड़ी चलाने मिला है। और मिसमी घर में कहीं फायर एक्सीडेंट होते हैं तो उन लोग टिम्बर फ्री ऑफ कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जैसे कि अभी तो आलूबारी ब्रिज, पाया ब्रिज, दिगारू ब्रिज हो गया है। उस जमाना में ब्रिज नहीं था, हम लोग का बोट चलता था। उस समय में भी वो टिम्बर मिल से बहुत सारा नाव वाला को बहुत कंट्रीब्यूशन किया है फ्री ऑफ कॉस्ट में। और जहाँ मेडिकल का जरूरत है, स्कूल का जरूरत है, बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, तो अरुणाचल गवर्नमेंट को भी, पब्लिक को भी, इंडिविजुअल आदमी को भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। ये इतिहास गवाह है। और मैं ऐसे इन्होंने टाइम नहीं बोल रहा हूँ, और भी मिसमी हम लोग का बुजुर्ग लोग है, अभी भी सुनपरा 100 मिल में जो काम किया है उन लोग है, अभी भी जिंदा है। आप अरुणाचल का जितना भी अरुण भूमि के जरिया से आप लोग व्यूअर्स, आप लोग देखिएगा, आप लोग विदाउट नॉलेज में आप लोग कमेंट्स नहीं करना है, उन लोगों को पूछना है, इसको रिसर्च करना है थ्रूली। अभी अरुणाचल में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी सोशल मीडिया में खुल के कुछ भी बोल लेता है। अभी सोशल मीडिया में कुछ बोलने का पहले ऐसे बोलने से मेरा फ्यूचर में, मेरा कम्युनिटी का ऊपर में आने वाला दिनों में क्या इफेक्ट होगा, उसको बहुत सोच समझ के बोलना है। तो उसके बाद में उसका बड़ा भाई चौजित मीन गोहाई, तो वो आपका लोहित वैली स्कूल स्टैब्लिश किया 1992 में, लोहित डिस्ट्रिक्ट में ही अभी भी वो स्कूल है। तो वो स्कूल जो है एक क्वालिटी टीचिंग देता था। तो उसी से हमारा जो मिसमी भाई बहन लोहित डिस्ट्रिक्ट में कोई भी जान जाति रहने वाला, हाँ, वो स्कूल में पढ़ लिख करके डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, ऑफिसर बना, वो भी एक समाज का इनडायरेक्ट डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। और उनका पिताजी चौपाक मीन गोहाई जो है मेंबर ऑफ द एजेंसी काउंसिल इन द इयर्स 1969, एक हमारा प्रदेश को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद में उसका एल्डर ब्रदर चाओ टेवा मीन गोहाई, वो प्रदेश काउंसिल मेंबर इन द इयर्स 1972 और सेवरल टाइम्स एमएलए 46 चौखाम वाक्रो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कई बार एमएलए इलेक्शन जीता है। और अरुणाचल प्रदेश में मिनिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो कितने बार होल्ड किया है। ये उनका फैमिली बैकग्राउंड है। तो नामचुम का बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। लेट चौखमन गोहाई, द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा। लेट चौखमन गोहाई, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश APCC। उनका बेटा का नाम है चाओ राजिंदा नामचुम, एमएलए अंडर द 47 नाम से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन द इयर्स 1995-99। तो आप लोग सोच के देखिए कि गोहाई जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट है। सभी लोग लिखते हैं जो वो चीफ का अंदर में जो राज किया वाला। आज का दिन में फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, आप लोग गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश,
पहले हम लोग का के राजा था, उसके बाद में उसका बीच में कई गवर्नर आया होगा, उसके बाद में आपका मिश्रा, सिंह, शर्मा कुछ भी आया होगा, वो एक पोस्ट है। तो उन लोग का एक्चुअल सर्च नेम तो मीन, नामचुम, चौतांग, लांगकिंग, जैनो और भी खामती में बहुत सारा ट्राइब है, सब क्लान है। तो इसलिए बोलना पड़ रहा है कि गोहाई जो लिखता था नामचुम में भी है, मामपू में भी है, चौतांग में भी है। जैसे कि सीके गोहाई एमएलए अभी भी है, बहुत लानर आदमी है, नामसाई डिस्ट्रिक्ट में है। तो बाद में उसका नाउ रेस हिज सरनेम एज सीके मामपू। उसके बाद में आप लोग देखिए, लेट चौतांग मामपुंग वाज द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अरुणाचल प्रदेश प्रेसिडेंट अरुणाचल यूनिट। तो मामपुंग फैमिली भी गोहाई लिखा था, लेकिन बाद में मामपुंग लिखा गया, तो इसलिए उन लोगों का नाम भी लेना पड़ रहा है। तो हम मिसमियो अनडिवाइडेड लोहित डिस्ट्रिक्ट में अंजाव, लोहित, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, खुनांग कृषि ज़्यादा जानकारी पॉलिटिकली, सोशली, एजुकेशनली बहुत लोग ने चोनामिन का फैमिली का ऊपर में, खामती फैमिली किसी का ऊपर में ये नॉन एपीएसटी है बोल के कभी भी इस प्रकार का कॉन्डेम नहीं किया, क्वेश्चन रेज नहीं किया। तो ये खुनांकरी जो है, जो कॉन्डेम किया सोशल मीडिया का जरिया, उनका अपना सेल्फ स्टेटमेंट है, उनका सेल्फ पॉलिटिकल मोटिवेटिव है। और हम लोग का मिसमी का जो इतना जानकारी लीडर्स है, उन लोगों का नाम को मैं बताना चाहता हूँ। कुछ तो हम लोग का बीच में नहीं रहा, कुछ लोग अभी भी है। तो आप अरुणाचल सभी भाई बहन, आप लोग उन लोग से पूछताछ कीजिए, रिसर्च कीजिए। खुनांकरी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको ब्लाइंडली आप लोग जो फेसबुक में कमेंट्स कर लेते हैं, सोशल मीडिया में, ये मैं गलत समझता, मैं उसको कंडेम करता हूँ। तो उन मिसमी लीडर का नाम मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सोबेंग तायंग प्रदेश काउंसिल मेंबर, मिनिस्टर्स, एमपी, लेट खाक्रिसोंग क्रोंग सेवरल टाइम्स मिनिस्टर्स, लेट कालिखो पुल several time ministers, chief minister of Arunachal Pradesh, Nakul Chai ex minister, Sokyo Dilang ex MLA, Sotai Kri contested as MLA Phote Lekang against Sri Chonamin। सोताई भाई साहब ने सिंस 1999 से लेकर की चोनामिन का अगेंस्ट में कॉन्टेस्ट किया। उन्होंने कभी भी चोनामिन का ऊपर में एपीएसटी स्टेटस को लेकर के कभी भी क्वेश्चन रेज नहीं किया। वो एक मेच्योर लीडर है, वो जानता है खामती लोग हमारा अरुणाचल का एपीएसटी है बोल के कभी भी रेज नहीं किया। आप इलेक्शन लड़िए, पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन इंडिविजुअल किसी का ऊपर में, समाज के ऊपर में ऐसे एक दाग नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद में हम लोग का डॉक्टर महेश चाय एक्स मिनिस्टर, कारिखोक्री सिटिंग एमएलए, उन लोगों ने भी कभी इस प्रकार का नहीं किया। कहीं सोसाइटी में, इंडिविजुअल में कहीं भी चर्चा नहीं हुआ है। अभी आप देखिए मिसिमी कम्युनिटी में ही दिबांग वैली, ले तारे ताचो एक्स मिनिस्टर, राजेश ताचो एक्स मिनिस्टर, मोपी मिहू सिटिंग एमएलए, उन लोगों ने कभी भी ऐसे चर्चा नहीं किया है। आप लोग लोअर दिबांग वैली का लीडर से भी आप लोग पूछ सकते हैं। लाटा उमरे जी 2 टाइम्स एमपी लोकसभा, 2 टाइम्स एमएलए, मुचू मिठी जी सिटिंग एमएलए, और मुकुट मिठी जी द डायनेमिक लीडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, held several times as minister portfolio, 3 times president APCC, chief minister of Arunachal Pradesh, CWC permanent entity member, Indian National Congress, lieutenant governor Pondicherry, 2 टाइम राज्यसभा MP। तो इन लोगों ने भी कभी भी
खमती समाज के ऊपर में इस प्रकार का क्वेश्चन रेज नहीं किया है, इसलिए इन लोगों से भी आप लोग जानकारी लीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप लोग कमेंट्स कीजिए। जो मैं आज मीडिया के जरिए बता रहा हूँ वो रिकॉर्डेड है। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग 200 से अधिक सब ट्राइब है, जनजातियां है, लेकिन किसी ट्राइब का भी राइटिंग में लिखित नहीं है। एक खमती सिंगफो का राइटिंग में लिखित में है। तो उसको रिसर्च करने के लिए अभी भी ब्रिटेन में शायद चांगलांग तिराप डिस्ट्रिक्ट से लोग गया हुआ है इसका एग्जैक्ट राइटिंग को उसको रिसर्च करने के लिए। तो इसको आप लोग मिस इंफॉर्मेशन, आधा नॉलेज होकर की जानकारी नहीं देना है। मैं आप लोगों को यही अपील करता हूं। उसके बाद में 1995 से लेकर के 2014 तक तो चोना मिंजी लेकांग से कॉन्टेस्ट करते आया। उसके बाद में ही 2019 पे चोखाम वाक्रो एसटी असेंबली कॉन्टेस्ट से कॉन्टेस्ट किया। वो जीतने के बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस, प्लानिंग, हाइड्रो पावर पोस्ट होल्ड किया है। तो वो चुनाव किसी भी पॉलिटिकल दल का हो, कोई भी पार्टी का हो, तो उसे हम लोग का लेना देना नहीं है। एक फादरली गार्जियन है हम लोग का अरुणाचल में, तो उसका ऊपर में जिस प्रकार से कॉन्डेम किया है तो मुझे तो बहुत दुख लगा है। और मैं सभी मिसमी भाई बहन को मैं आप लोगों को अपील करता हूं कि आप लोग भी खुनांग भाई साहब को आप लोग समझाइए। जो उन्होंने सोशल मीडिया में बता दिया है वो जो करना था कर लिया है। फ्यूचर में आगे दोबारा ऐसे नहीं आना है बोल के आप लोग खुनांग का कोई रिश्तेदार होगा, भाई बहन होगा, कोई दोस्ती यार होगा, आप लोग भी उनको समझाइए। मैं भी खुनांग भाई साहब को ऐसे नोने टाइम यंगर ब्रदर्स मैं उनको जरूर मिलूंगा, उनको समझाने का मैं कोशिश करूंगा। इस प्रकार से फ्यूचर में चौना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल के नहीं है, कोई भी खमती सिंगफो का ऊपर में नॉन एपीएसटी है बोल के इस प्रकार से आप मत बोलिए। आप ये केवल चौनामीन को नहीं बोल रहे हैं। चौनामीन कौन सा कम्युनिटी से बिलोंग करता है? वो खमती समाज से बिलोंग करता है। तो आप सारा खमती समाज को बोल रहे हैं, ये सभी होते हैं। इसलिए मैं उनको जरूर मिलूंगा, शॉर्टली मैं उनको मिल के बात करूंगा। मानना नहीं मानना उनका ऊपर है, मैं उनको जरूर मेरा तरफ से अपील करूंगा। इस प्रकार से नहीं बोल रहे हैं। तो चौनामीन चौकाम वाक्रो कॉन्स्टिट्यूंसी जीतने के बाद उनका मेजर अचीवमेंट क्या क्या किया है उस एरिया के लिए? डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ परशुरामकुंड हेरिटेज पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन अंडर द प्रासाद स्कीम। चौनामीन रहो या मत रहो, ये चीज किया है तो आपका मिसमी समाज के लिए, अरुणाचल के लिए, देश के लिए एक नाम छोड़ के जा रहा है। उसके बाद में क्रिएशन ऑफ एडीसी पोस्ट वाक्रो सर्कल, सॉल्व द बाउंड्री इश्यू ऑफ लोहित एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। चांगलांग और लोहित डिस्ट्रिक्ट का इतना सालों से बाउंड्री इश्यू का पेंडिंग था। चौनामीन का लीडरशिप इसको सॉल्व किया है तो उसको तो हम लोग मानना पड़ेगा। उसके बाद में द आसाम अरुणाचल बाउंड्री इश्यू लोहित एंड नामसाई डिस्ट्रिक्ट, वो भी ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है। ऑफिशियल गेजेट में अभी नोटिस नहीं आया है, अनऑफिशियल तो हो ही गया वो भी। तो अभी आप सपोज मान लीजिए तेजू में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज, लेट खपरीसोंग क्रो अंकल जब एजुकेशन मिनिस्टर था उस समय में आईजीजी कॉलेज खुला है। तो वो मिसमी एरिया में खुला है, लेकिन सिर्फ मिसमी को बेनिफिट नहीं है ना, इंडिया में कोई भी जनजाति रहने वाला, लोहित डिस्ट्रिक्ट में कोई भी रहने वाला, अरुणाचल का सभी ट्राइब को बेनिफिट मिलता है। अभी हम मिसमी लोग, कोई खेती करने वाला, कोई लेबर क्लास का, कोई नॉन एपीएसटी ठेला रिक्शा वाला, तेजू में कॉलेज सुविधा हुआ बोल के ही ठेला रिक्शा वाला बच्चा भी, गांव में खेती करने वाला उसका बच्चा भी ग्रेजुएशन तो हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी चौनामीन जी एक दिन तो एमएलए नहीं रहेगा, एक दिन तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा,
एक दिन तो इस दुनिया से नहीं रहेगा। ये समाज के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, वो हमारा सोसाइटी का एक्सेट है, नेशन का एक्सेट है, तो उसको इस प्रकार से कंडेम करेगा तो माने फ्यूचर जनरेशन हमारा जो समाज में इस प्रकार से जो करेगा वो गलत है। तो इसलिए मैं कंडेम करता हूं। और इंटरेस्टिंगली, अनफॉर्चुनेटली, जो हम लोग का अरुणाचली ट्राइब और मेनलैंड इंडिया आदमी से नाम मिलता जुलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मिली, दिबांग वाले में मिली है, हम मिसमी बाय है, तो आसाम में भी मिली है, वो मिसिंग ट्राइब से है। क्या खुनांग भाई साहब आप उसको एपीएसटी कैंसिल करने के लिए क्या आप डिमांड करेगा? क्या आप कर पाएगा? जैसे कि मोदी सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, आदि कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो मोदी कम्युनिटी जो है, क्लैन जो है, मेनलैंड इंडिया, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और भी कई स्टेट में है। तो क्या पासीघाट का मोदी को आप नॉन एपीएसटी बोल के उसका एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल कर पाएगा? उसको हटा पाएगा? मैं आपको ये पूछना चाहता हूं। उसके बाद में आइए अपर सुबनसिरी पे, रेड्डी हाइडर। रेड्डी जो है साउथ इंडियन में है, हाइडर जो है मुस्लिम कम्युनिटी में है। क्या उनको क्या आप मुस्लिम साबित कर रहे हैं क्या? और अपर सुबनसिरी का कुछ लोग रेड्डी लिखता है, उनको आप साउथ इंडियन बोले हैं क्या? तो ये अनफॉर्चुनेट नाम मिलता जुलता है, ये तो खुशी होना चाहिए। तो आप इस प्रकार से जो क्वेश्चन किया है ये बहुत ही गलत है। तो लास्टली में मेरा तरफ से नुने तैन की ओर से, मिसमी समाज की ओर से, खामती समाज के आप लोगों को दुख नहीं होना है। खुनांक्री ने जो भी प्रेस स्टेटमेंट दिया है, ऑल ताई खामती सिंगफो स्टूडेंट यूनियन, ताई खामती सिंगफो काउंसिल, ताई खामती सिंगफो डेवलपमेंट, आप सभी को मैं अपील करता हूं कि जो भी खुनांक्री ने स्टेटमेंट दिया है उसका इंडिविजुअल स्टेटमेंट था, उनका पॉलिटिकल मोटिवेटेड था, और हम लोग का मिसमी समाज की ओर से नहीं है। हम लोग का मिसमी समाज का हाईएस्ट एपेक्स बॉडी MWS है, मिसमी वेलफेयर सोसाइटी है, कालसाम है, कल्चरल लिटरेरी सोसाइटी मिसमी है, आमसो है स्टूडेंट यूनियन का, ऑल मिसमी स्टूडेंट यूनियन है, उन लोग का तरफ से ऐसे कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग दुखी नहीं होना है। पहले भी हम लोग मिलजुल करके रहता है, आने वाला फ्यूचर जनरेशन को भी हम लोग मिलजुल करके ही रहना है। और नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो पहले अनडिवाइडेड था, अभी ही डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ हाल ही में, और कल को कुछ दुख तकलीफ होगा तो हम लोग का नेबरिंग ही काम आएगा। बाहर डिस्ट्रिक्ट, दूर में रहने वाला, बाहर स्टेट, वो तो काम नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट खुनांग भाई साहब ने रिगार्डिंग रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर की बहुत बड़ा क्वेश्चन किया है। उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट में खुद बोला है कि लेक कालेको पुल का ऊपर भी रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर की ये कंप्लेंट दिया है, और टेंगा पानी रिजर्व फॉरेस्ट, नामसाई रिजर्व फॉरेस्ट का ऊपर में उन्होंने बोला है। तो आज का दिन में रिजर्व फॉरेस्ट जो है बहुत बड़ा बर्निंग इश्यू है, और हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत चैलेंजिंग है। ये जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट किया गया उस जमाना में आसाम फॉरेस्ट रेगुलेशन 1891 उसका मुताबिक जितना भी रूल रेगुलेशन है उसको मैंडेटरी प्रोसीड्यूर को एक भी फॉलो नहीं किया है। रिजर्व फॉरेस्ट का डिक्लेयर करने का रोल किसका है? डिप्टी कमिश्नर। जब डिप्टी कमिश्नर जो है रिजर्व फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर बन के करता है FFO, और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डेफो जो है असिस्टेंट फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर बन करके करता है। तो उस जमाना में हम लोग पॉलिटिकली, सोशली,
एजुकेशन अवेयरनेस नहीं था हम लोग का जो माता पिता लोग, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर उन लोगों को मिसगाइड किया है। अरे रिजर्व फॉरेस्ट करने से आप लोग का रिजर्व है, पेड़ पौधा सब आप लोग को ही मिलेगा, हम लोग लेके नहीं जाएगा, हम लोग तो ऐसे ही लगा रहे हैं। वो झूठा वादा करके उन लोग फॉरेस्ट रिजर्व डिक्लेयर किया। वो फॉरेस्ट रिजर्व में कैसे डिक्लेयर किया के जरिया ऑफिस में बैठ करके, टेबल में बैठ करके उन लोग जितना भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करके, पब्लिक हियरिंग नहीं किया, कंपेंसेशन नहीं दिया, क्लेम ऑब्जेक्शन करने नहीं दिया, वैसे करके डायरेक्ट फाइनल नोटिफिकेशन करके रिजर्व डिक्लेयर किया। वो जितना भी रिजर्व जो है इलीगल रिजर्व है। तो आप लोग जितना भी अरुणाचल के भाई बहन, आप लोग ध्यान से सुनिए, रिजर्व फॉरेस्ट केवल नामसाई डिस्ट्रिक्ट में इफेक्ट नहीं होगा, केवल लोहित डिस्ट्रिक्ट में इफेक्ट नहीं होगा, पूरा अरुणाचल में रिजर्व फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ ही वाइल्ड लाइफ है। आप लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड देखिए, एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 अबाउट अरुणाचल प्रदेश, टोटल एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश 83,743 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। उसमें से फॉरेस्ट कवर एरिया 67,250 स्क्वायर किलोमीटर, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 51,407 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट आप लोग देखिए 10,589 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व फॉरेस्ट, 9,779 स्क्वायर किलोमीटर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, 31,039 स्क्वायर किलोमीटर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। The forest cover in the state is 66,687 square kilometer, excluding group of 229.46 square kilometer, 21,095 square kilometer very dense forest, 30,556 square kilometer moderate dense forest, 15,035 square kilometer open forest. During the period of 1 January 2015 to 5 February 2019, a total of 4,051.37 hectares of forest land was diverted for non-forestry purpose under the Forest Conservation Act 1980. There are 2 national parks and 11 wildlife sanctuaries constitute the protected area network of the state. According to the official website, 10,185.40 square kilometers are being protected, out of which the total forest cover in the state of 67,250 square kilometers. नेशनल पार्क तो 2 है, नामदाफा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व चांगलांग, मोंगलिंग नेशनल पार्क ईस्ट सियांग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईगल नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट कामिंग 218 स्क्वायर किलोमीटर, सीसा ऑर्चिड सेंचुरी वेस्ट कामिंग 100 स्क्वायर किलोमीटर, पाके टाइगर रिजर्व पाके किसाम 861.95 स्क्वायर किलोमीटर, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईटानगर 140.30 स्क्वायर किलोमीटर, ताले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोअर सुबनसिरी 337 स्क्वायर किलोमीटर, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोहित डिस्ट्रिक्ट 783 स्क्वायर किलोमीटर, योडी राबे सुबसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट सियांग 397 स्क्वायर किलोमीटर, काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट सियांग 31 स्क्वायर किलोमीटर, डाइंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पासीघाट 190 स्क्वायर किलोमीटर, मेहू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिबांग वैली 281.5 स्क्वायर किलोमीटर, दिबांग वैली सेंचुरी दिबांग वैली 4,150 स्क्वायर किलोमीटर,
तो अरुणाचल में डेवलपमेंट करना है, स्कूल खोलना है, मेडिकल खोलना है, टूरिज्म आना है, हाइड्रो पावर आना है, आपका एयरपोर्ट बनाना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो डे बाय डे बढ़ते जाएगा। तो प्लेन एरिया जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, जहां सुविधा होगा वहां तो डेवलपमेंट करेगा। तो आप रिजर्व फॉरेस्ट को इतना आप प्रोटेक्शन करेगा तो आदमी ह्यूमन सेटलमेंट भी डे बाय डे पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएगा? चीन बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर, जहां पहाड़ में तो हम लोग नहीं जा सकते, वहां से स्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकते। अभी खुनांग जी आप देखिए, आप वाक्रो सर्कल में, आप नामगो विलेज में है, नामगो विलेज का जितने भी आसपास में रिजर्व फॉरेस्ट है, तो वो सब मिसमी भाई बहन लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो आपका माता पिता, आपका भाई बहन भी वहां खेती करता है, उन लोग कहां जाएगा? अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, छकलागम वालों की पिठों में 1 साल खेती करने से भी प्लेन एरिया में 1 घंटा ट्रैक्टर में खेती करने का उसका बराबर नहीं है। तो वो लोग को कहां भेजेगा आप? तो रिजर्व फॉरेस्ट का ऊपर में मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहता हूं कि ये रिजर्व फॉरेस्ट को जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जहां प्लेन एरिया है, वहां को डी रिजर्व करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो हम लोग डेवलपमेंट कहां में करेगा? और एक रिजर्व को क्लियरेंस लाने में, कोई भी प्रोजेक्ट में सालों लग जाता है। उसमें सब अरुणाचल में प्रोजेक्ट जो ठप हो जाता है। जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएगा। सिंपल एक एलपीसी के लिए भी मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो मैं सभी व्यूअर्स लोग को मैं अपील करना चाहता हूं कि मैंने जो चीज कहा अरुण भौमिक प्रेस के माध्यम से, आप लोग जितने भी मैं गोहाई को लेकर की, रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर की, चोनामिन का फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के मैंने कहा, आप लोग उसको थ्रूली प्रॉपरली आप लोग रिसर्च कीजिए, तभी कमेंट्स कीजिए। आप लोग आधा नॉलेज जानकारी नहीं होकर कि फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में कमेंट्स मत कीजिए। मैं आप लोगों की मैं ऐसे नुने टाइम एक बीइंग ए मिसमी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं आप लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ। थैंक यू एंड सो मच।